Good morning, class Earth. Again, I am KN Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class, we have completed the explanation, question answers, and written test also of chapter light. Students, I want to know something. Uh, what is the name of the planet on which we used to live? Do you know? Yes, correct. The Earth. The Earth is the only planet on which life is possible. Why life is possible? Because air and water both are present upon this planet, Earth. Around ourselves, in the space, there are many heavenly bodies, also known as celestial bodies. Do you know? I think all of you have already studied in geography about various types of satellites, about various planets which are in our surrounding. Students, it is very essential to know about our planet on which we used to live because only Earth is having water and air upon the surface of it. Okay? So, is it essential to study about this planet, our universe? Yes, why not? It is very essential, students. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जो आपके एनुअल सिलेबस में रखा गया है. इस चैप्टर का नेम है द यूनिवर्स. एज यू नो, it is chapter number 16 in your book, The Universe. So let's start. The planet on which we used to live, we used to survive, on which the life is possible. Do you know life is possible upon the earth only? Because water and air are present on earth only, not any other planet. रात में कभी कभी जब आप ओपन स्काई के नीचे रहते हैं तो आपको दिखाई देते हैं ढेर सारे स्टार्स, और स्टार्स के अलावा भी बहुत सारी हेवन बॉडीज़ आपको दिखाई देती हैं. ये स्टार्स बहुत छोटे छोटे हमको दिखते हैं और ट्विंकल करते हैं, ये चमकते रहते हैं. आपको पता है क्यों? बिकॉज दीज स्टार्स आर प्रेजेंट very far from us, so they looks like very small. Okay, open students page number 219 in your book, The Universe. Students, the universe include whole of the existing space around the earth and all heavenly bodies contained within it. Okay, it means the universe includes the earth and all the heavenly bodies like stars, planets, satellite and several other celestial bodies. Celestial bodies किसको बोलते हैं? Heavenly bodies को, that we see in the sky. The science of observation and study of composition, behavior and other information about star, planet, moon, asteroid is called astronomy. तो हम स्टार्स की, मून की, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी जिस साइंस में करते हैं उस साइंस को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ दिस वर्ड एस्ट्रोलॉजी? डू यू नो? यस, एस्ट्रोलॉजी is the study of various kinds of planets, celestial bodies, moon, earth. ओके, तो ये वर्ड कभी सुना है आपने? प्रतिभा चौधरी, सुना है? एस्ट्रोलॉजी वर्ड सुना है आपने? ओके. लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स इन द सॉइल and large amount of energy from the sun.
अर्थ पे सन की मैक्सिमम एनर्जी आती है और अर्थ पे सॉइल है। सॉइल सबसे वंडरफुल चीज़ है इस अर्थ पे। आपको पता है नैन्सी, सॉइल में हम कोई भी सीड अगर डाल देते हैं तो वो सीड अपने आप जर्मिनेट कर जाता है और एक दिन वो सीड ग्रो करके प्लांट बना लेता है, ट्री बना लेता है, जिस भी चीज़ का वो सीड है वो बना लेता है। सॉइल की जगह दूसरी किसी चीज़ में डाल दें उस सीड को तो क्या तब भी वो जर्मिनेट होगा? आयुष पांडे, क्या तब भी जर्मिनेट होगा? रजनीश चौधरी, सूजी के हलवे में डाल दें सीड को, जर्मिनेट होगा। आटे में डाल दें, डो जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या तब भी जर्मिनेट होगा? नहीं, because soil contains some special type of nutrients which are called macronutrients and micronutrients. These macronutrients and micronutrients are very essential for germination and for development of seed into plant. Okay? In daytime, अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि spinning or rotation of the earth around sun axis causes day and night. रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन कॉजेज चेंज ऑफ वेदर। ग्लोब देखा है सबने, कई बार ले जाके आपको दिखाया गया है, क्लास में ले जा करके आपके एसएसटी वाले सर ने दिखाया है ग्लोब को। ग्लोब में ऐसी क्या ख़ास बात है? ये फुटबॉल से कैसे डिफरेंट है पता है आपको? जो फुटबॉल होती है वो एकदम प्योर सर्कल होता है फुटबॉल, और जो ग्लोब होता है वो ऊपर और नीचे ऐसे दबा होता है, फ्लैट एंड होता है ग्लोब, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्लोब है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है अपने एक्सिस पे, इस तरीके से झुका हुआ होता है, ठीक। जो ग्लोब है जो वो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और उस ग्लोब में दो तरह का मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट तो होता है अपनी एक्सिस पे, ये ग्लोब, ये अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है। इस रिवॉल्व करने से डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है, ओके। और दूसरा, ये जो ग्लोब हमारा है ये इस तरीके से रिवॉल्व भी करता है सन का, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इस रिवॉल्व करने से सीजन चेंजेस होते हैं, ओके। तो ये दो तरह का हम मूवमेंट देखते हैं अर्थ में, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। रोटेशन और स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, लिखा हुआ है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन कॉजेज चेंज ऑफ वेदर। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ कम टू द नाइट स्काई। स्टूडेंट्स, इन द डे टाइम ओनली सन इज विजिबल इन द स्काई। तो और कुछ दिखता है क्या आपको? प्रतिभा चौधरी, और कुछ दिखता है क्या दिन में? तो डे टाइम में केवल हमको सन दिखाई देता, स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं, मून नहीं दिखाई देता है, और जितने एस्टेरॉयड्स हैं वो एक भी हमको नहीं दिखते डे टाइम में, केवल नाइट टाइम में दिखते हैं। सनसेट्स स्काई अपीयर्स फुल ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। और जैसे ही सनसेट होता है, शाम को, इवनिंग में जैसे ही सनसेट होता है, हमको बहुत सारे स्टार्स स्काई में विजिबल हो जाते हैं। द ट्विंकलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ऑन क्लियर नाइट। स्टार्स हमको टिमटिमाते दिखते हैं, ट्विंकलिंग होती है उन स्टार्स में, बिकॉज दे आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम अस, पहली बात। दूसरी बात, इन आर सराउंडिंग, इन सराउंडिंग ऑफ अर्थ वेरियस गैसेज आर प्रेजेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर in our surrounding, twinkling of stars can be seen. There are billions of stars in the universe which are not uniformly distributed. आपको पता है कि ये जो स्टार्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, only they situated, they distributed uniformly. They are present in zigzag function, zigzag position. zigzag, zigzag का मतलब क्या होता है? वो zigzag scattered होते हैं स्काई में,
जिगजैग का मतलब जब प्री डिसाइडेड प्लेस पे कोई चीज़ ना हो, बिखरी हुई हो, पहले से फिक्स ना हो कि किस जगह पे होगी। तो these occur in form of a huge bunches or clusters. Such a group of star is called galaxy. तो गैलेक्सी का मतलब पता चल गया सभी को। रजनीश, आयुष पांडे, पता चल गया। दुबे, चलिए, तो ऐसे स्टार्स के ग्रुप को हम गैलेक्सी बोलते हैं। Now, the sun, the earth, and other planets, and all the stars that we see in the sky belong to a galaxy is called Milky Way. It is also called Akash Ganga. आ रहा है समझ में? It is assumed that there are some 10 to power 11 galaxies in the universe, and each galaxy contains 10 to power 11 stars in it. तो ये एज्यूम किया जाता है कि टोटल 10 टू पावर 11 गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी के पास 10 टू पावर 11 स्टार्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। नाउ स्टार्स पे आते हैं। स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड एमिट लाइट। बच्चों, हम लोग इससे पहले लाइट चैप्टर पढ़े हैं, उसमें हमने आपको बताया था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस बहुत बच्चों का जो हमने टेस्ट लिया है उस टेस्ट में भी यही चीज़ गलत हुआ है, जैसे प्रतिभा चौधरी का। तो बहुत सारे स्टार्स अवेलेबल हैं और ये स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है। तो इनको क्या कहा जाएगा? खुद की लाइट होती है। यस, करेक्ट करेक्ट रजनीश, ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टार्स आर हेवनली bodies that are extremely hot and emit light. They consist of very large quantities of gases, mostly hydrogen and helium. तो स्टार्स के पास कौन सी गैसेज होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। द लाइट रेडिएटेड बाय द स्टार मेक देम विजिबल और शाइन। जब ये लाइट एमिट करते हैं स्टार, लाइट एमिट करने की वजह से ये हमको विजिबल होते हैं और ये ट्विंकल करते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज़। हम जितना छोटा देखते हैं स्टार को, उतना छोटा वो है नहीं। फिर हमको छोटा दिखता क्यों है? वो छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है वो। ओके, स्टार्स आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज़, दे आर मच लार्जर देन अर्थ। कुछ स्टार्स तो इतने बड़े हैं कि वो हमारे अर्थ से भी बड़े हैं साइज में। सम आर इवन लार्जर देन सन, कुछ तो सन से भी बड़े हैं। नाउ दे अपीयर स्मॉल एंड डिम बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वही बात लिखी हुई है। द कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ स्टार आर सो फार अवे फ्रॉम अर्थ दैट लाइट फ्रॉम देम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच अस। बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं किसी स्टार की लाइट को हम तक पहुंचने में। मोस्ट ऑफ स्टार्स आर सो फार अवे फ्रॉम अर्थ that light from them take million of years to reach us. The distance of a star is therefore expressed in terms of light year. तो स्टार से अर्थ की डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने भेजा था उसमें हमने आपको लाइट ईयर के बारे में बताया था। उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, चल नहीं रहा था वो, इसलिए हमको दोबारा वीडियो भेजना पड़ रहा है। डिस्टेंस, तो 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर किसको बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर is called light year. Okay, now
अब ये कुछ लिखा हुआ है बुक में, इसको आप देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, कुछ बच्चे हमसे पूछे भी थे, इस पे हमने क्वेश्चन दिया था, वो भी किए थे। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ये 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आता है निकालने पे। 1 light year is equal to nearly 10 million kilometer approximately. The time taken by sunlight to reach Earth is 8.3 minutes. The astronomical unit parallactic second or parsecond is equal to 3.26 light year are used to measure the distances of star and galaxies. तो ये पैरालैक्टिक सेकेंड इसको बोलते हैं, पारसेक लिखा हुआ है। ये कैसे निकलता है? 3.26 लाइट ईयर, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, इसको पारसेक बोलते हैं। और पारसेक जो है वो मेज़र करने के लिए पारसेक यूज़ करते हैं। किस चीज़ को मेज़र करने के लिए? डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। हम इस डिस्टेंस को किलोमीटर में, मीटर में नहीं मेज़र कर सकते। आते हैं कॉन्स्टिलेशंस पे। कॉन्स्टिलेशंस, recognizable shape formed by the group of stars is called constellation. These were named by the incipient people related to animal or human being. All constellation revolve around the pole star. पोल स्टार जानते हैं आप लोग? पोल स्टार, ध्रुव तारा का नाम सुने हैं? ध्रुव तारा किस तरफ होता है स्काई में? किस तरफ होता है ये बताइए? यस, करेक्ट, नॉर्थ साइड में। और इसकी जगह फिक्स होती है, ये अपना पोजीशन नहीं चेंज करता। These were named by the ancient people the pole star which remain fixed in the north. लिखा भी हुआ है। All stars in a constellation stay together. As you know, Earth rotates on its own axis from west to east. It appears that constellations are moving in the sky from east to west. We can easily identify some constellation with naked eyes. अर्थ हमारी मूव करती है, रोटेट करती है। अर्थ किस तरफ से किस तरफ? ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो एक्सिस पे, अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और इसीलिए जो कॉन्स्टिलेशंस हैं हमारी सराउंडिंग में, स्पेस में, वो कॉन्स्टिलेशन हमको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते दिखते हैं। आपको पता है जिस तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में स्टैंडिंग बॉडीज़ होती हैं, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको मूव करती हुई फील होती हैं, लेकिन वो मूव नहीं करती हैं, वो तो स्टैग्नेंट हैं, एक जगह रुकी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयुष पांडे, जैसे अगर बाइक से आप जा रहे हो, जैसे स्कूल बस से आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हो, तो बस तो आपकी मूव करती है, लेकिन रोड साइड पे जो ट्रीज़ हैं, जो हाउसेज हैं, जो टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, वो सारे के सारे मूव नहीं करते। लेकिन आपकी बस आगे की तरफ मूव करती है, तो लगता है कि वो पेड़ सब पीछे जा रहे हैं। होता है ऐसा? ओके, करेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सामने की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक वही चीज़ हमारी अर्थ के साथ है। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसीलिए जो कॉन्स्टिलेशंस प्रेजेंट हैं इस स्पेस में, वो हमको मूव करते दिखाई देते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जस्ट अपोजिट। आया समझ में? चलिए, अब ये गैलेक्सी और कॉन्स्टिलेशन में डिफरेंस लिखा हुआ है। गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार और नंबर ऑफ स्टार इन कॉन्स्टिलेशन इज लिमिटेड। शेप ऑफ अ गैलेक्सी डज नॉट रिजेंबल रिकॉग्निजेबल शेप और पैटर्न। गैलेक्सी का शेप नहीं डिफाइन होता है, जबकि शेप ऑफ कॉन्स्टिलेशन रिजेंबल रिकॉग्निजेबल शेप और पैटर्न दैट ऑफ एन एनिमल और ऑब्जेक्ट। कॉन्स्टिलेशन का जो शेप होता है वो किसी एनिमल का या किसी ऑब्जेक्ट के शेप से मिलता जुलता है। और थर्ड डिफरेंस लिखा हुआ, देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द स्काई, देयर आर ओनली 88 कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। यानी कि जो गैलेक्सीज हैं वो बिलियंस हैं नंबर में, लेकिन जो कॉन्स्टिलेशंस हैं
वो केवल 88 है। ओके, तो हम लोगों ने आज पढ़ा कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, स्टार्स के बारे में। स्टार्स हमको इतने छोटे क्यों दिखते हैं, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, दे ऑलवेज ट्विंकलिंग इन द स्काई, वाई, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट। हमको जितने भी कॉन्स्टिलेशंस हैं वो सब ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते क्यों दिखते हैं, हमारी अर्थ में कितने तरह की रोटेशन होती है, रिवोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़े। तो स्टूडेंट्स, your today's homework is write down the word meaning in CW copy. This is your homework, and revise whatever we have studied today in online class. This is all for today, students. Stay home and be safe. Thank you, Class Earth. Thank you.